Good day, students. Today's lecture is on graphs. Graphs are the data structures having two sets. The first set is called the set of vertices, and the second set is called the set of edges or arcs. So, it is a combination of two sets, vertices and edges. So, first, what is a graph? A data structure that consists of a set of nodes or vertices and a set of edges or arcs. These arcs relate or connect the nodes to each other. That is called a graph. The set of edges describes the relationship among the vertices. So in the diagrams, we have two graphs. The first one is undirected graph, the second one is directed graph. In this graph, we have four vertices and we have four edges or arcs. In this graph, we have three vertices or nodes and 1, 2, 3, 4, 5 and 6 edges, and each edge has a direction. Next, a formal definition of a graph. A graph G is defined as G equal to V comma E, where V is a finite non-empty set of vertices and EG or E a set of edges represented by a pair of vertices, and each edge in E is identified with a unique pair U comma V of nodes in V denoted by E equal to U comma V. So each edge is denoted by a pair of vertices, that is, this is the first vertex, this is the second vertex. It means the edge exists between U and V. It shows that edge exists between U and V. Next, some introduction about the graph. A graph G is represented by V comma E, where V is a set of vertices, E is a set of edges. V is called the vertex set. Vertices are also called nodes or points. E is the edge set. Each edge connects two vertices. Edges are also called arcs or lines. Now, vertices I and J are called adjacents, vertices or neighbors, if I comma J is an edge in the graph. If और I और J के बीच में, ये मान लीजिए I है मेरे पास, ये मेरे पास J है, दोनों के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, तो I is adjacent to J, J is adjacent to I, और we say I and J are neighbors. The edge ij is incident on the vertices I and J. So this edge, if we say E as an edge, it is incident on I and J. This edge is incident on I and J. And I and J are neighbors or adjacent vertices. अगर मान लीजिए कि K भी आपका एग्जिस्ट करता है, तो J and K are adjacent, but I and K are not adjacent vertices. Next, directed and undirected graphs. When the edges in a graph have no direction, the graph is called an undirected graph. So this is an example of undirected graph. What is the importance of this one? That is, V1, V2 in E is an unordered pair. So what is the meaning of this? Every edge
in the edge set is an unordered pair. It means we can represent this edge either saying it's AB or it is BA. This edge is we can say it is BD or BB, one is same thing. So for this graph, the vertex set is ABCD. The edge set is, we have a edge AB, we have an edge AD, we have an edge BC, and we have an edge BD. So these are the four edges in this undirected graph. When the edges in a graph have a direction, the graph is called a directed graph, or in short it is called a digraph. That is, V1, V2 in the edge set is an ordered pair. So here each edge is represented by an ordered pair of vertices. That is, this edge, we say it is 11, 1. This edge, we say 9, 11. You cannot say it is 11, 9. The first vertex is the starting vertex and the second vertex is the ending vertex of that edge. So in the vertex set we have 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 and 11. In the edge set we have 1, 3, 3, 1, then we have 5, 9, then we have 5, 7, then we have 9, 9, then we have 9, 11, then we have 11, 1. So these are the edges in the graph. Point to be noted, if the graph is directed, the order of the vertices in each edge is important. अगर ग्राफ डायरेक्टेड है आपका तो ऑर्डर है वो वर्सेस का मैटर करता है. अगर अनऑर्डर्ड ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता. बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे ग्राफ के अंदर. एडजेसेंट नोड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी टू नोड्स आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज. दैट इज इफ इन दिस केस इज अ डायरेक्टेड एज, 5 is adjacent to 7 and 7 is adjacent from 5. If the graph is undirected, then we say 5 is adjacent to 7, 7 is adjacent to 5. In this case, when the graph is directed, 5 is adjacent to 7, 5 is adjacent to 7 and 7 is adjacent from 5. These are minor difference. Loops. An edge E is called a loop or self-loop if it has identical endpoints. If it has identical, that is E equal to U comma U. So this is a loop or self-loop. An edge which have identical endpoints. That is, if this is an A vertex, so its starting point is A, its ending point is also A. Multiple edges. Distinct edges E and E dash are called multiple edges if they connect the same endpoints. If it is 1, it is 2. So these two, this one and this one, are multiple edges or multi-edge. That is, if E equal to U comma B and E dash equal to U comma B, both have the same direction. If one has in the opposite direction, then they are not multiple edges. So this new edge is not a multiple edge because it is in the opposite direction. But if they are directionless, then they are multiple edges. Next is degree of a vertex. It is the number of edges incident to that vertex. Suppose we have this vertex. So 5 edges incident on it. So degree of this vertex is 5 in case of undirected graph. Now when the graph is directed, so we have two types of edges. Some have direction
outside, some have direction inside. So the edges which have inside direction, that is called in degree of the vertex. Those have out direction, that are called out degree of the vertex. So the in degree of a node u in G graph written as indeg u is the number of edges ending at u, and out degree, the out degree of a node u in G is written as out deg u is the number of edges beginning at u. जो u से शुरू हो रहे हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं इस वाले, तो ये उसकी आउट डिग्री हो गई, दैट इज 2, और ये इसकी इन डिग्री होगी जो यहाँ पे एंड हो गई। अगर मैं सारे वर्टेक्स की, पूरे ग्राफ की डिग्री जानना चाहता हूँ, या सारे एज, सारी ग्राफ की डिग्री जानना चाहता हूँ, तो मैं एजेस को ट्वाइस कर दूंगा। एज, क्योंकि एक एज 2 डिग्री ऐड करता है ग्राफ के अंदर, तो एजेस को का ट्वाइस ले लोगे तो आपको टोटल डिग्री मिल जाएगी पूरे ग्राफ की, या सबका सम कर लेंगे। टोटल सम जानना चाहते हो आप ग्राफ की डिग्री का, तो वो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस। ये हमारी एग्जांपल है डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स की। ये आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, चेक कर लीजिए। डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स इज 3, डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स इज 3, डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स इज 3, डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स इज 3। ईच vertex has 3 edges incident on it. In this graph, degree of this vertex is 2, degree of this vertex is 3, degree of this vertex is 1, degree of this vertex is 1, degree of this fifth vertex is 1, degree of sixth is 1, degree of 2 is 3. नेक्स्ट डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की इन डिग्री और डिग्री। जीरो के केस में, जीरो वर्टेक्स के लिए इन डिग्री 1 और डिग्री 1। सो ये इसकी इन डिग्री हो गई, ये इसकी आउट डिग्री हो गई। वर्टेक्स 1 के लिए इन डिग्री ये वाली 1, आउट डिग्री 2, दैट इज ये वाली, और ये दोनों आउट डिग्री है इसकी। 2 के केस में इन डिग्री 1, आउट डिग्री 0। So this is the example of degree of a vertex. Next is a path. A sequence of vertices that connect two nodes in a graph is called a path. A sequence of vertices that connect two nodes in a graph is called a path. Path from vertex V0 to vertex VK, 0 से लेके K के बीच में, तो मान लीजिए एक पाथ एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होगा, वो कहता है एक सीक्वेंस होगी वर्सेस की V0 से लेके VK के बीच में, एंड फॉर ऑल 0 इक्वल टू एंड और लेस देन I लेस देन K एज VI टू VI एंड VI प्लस 1 एग्जिस्ट, यानी कि 0 से लेके K लेस देन K तक सारे वर्टेक्स के बीच में क्या करता है, एज एग्जिस्ट करता है, एज एग्जिस्ट करता है। द पाथ इज, तो ऐसे ये पाथ कितनी लेंथ का होगा, कहता K लेंथ का होगा। कितनी लेंथ का होगा जी, क्योंकि 0 से हम K तक चल रहे हैं, तो ये कितनी लेंथ का होगा, K लेंथ का होगा। अगर मैं 1 से K तक चलूंगा तो ये K माइनस 1 लेंथ का रह जाएगा, एक कम। चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 0 से लेके 3 तक 3 पाथ दिखाए गए हैं। एक पाथ हमारा ये है, 2 से हम 1 पे आए, 1 से हम 3 पे चले गए, ऑफ लेंथ 2, 2 से 1, 1 से 3। एक और है हमारे पास, 2 से हम 0 पे गए, 0 से हम 3 पे चले गए। ठीक होगी जी बात। फिर एक तीसरा है हमारे पास, 2 से हम 0 पे गए, 0 से हम 1 पे गए, और 1 से हम 3 पे चले गए। सो ये 3 पाथ है हमारे पास। कितने पाथ है जी, 3 पाथ 2 से लेके 3 के बीच में, जो हमारी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अदरवाइज और भी 0 से आप देखोगे तो अलग मिल जाएंगे, 3 से अलग मिल जाएंगे, वो अलग पाथ है, बट 2 से 3 तक ये 3 पाथ है। पाथ सिंपल हो सकता है या क्लोज हो सकता है। एक पाथ को मैं सिंपल कहूँगा इफ द वर्ड्स इन द सीक्वेंस आर डिस्टिंक्ट, अगर
सीक्वेंस के v0 से लेकर vk तक के बीच में जितने भी वर्टेक्स है वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो मैं पाथ को सिंपल कहूँगा। ऑल पाथ फ्रॉम 2 to 3 इन द फिगर सिंपल पाथ, ये सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिंपल पाथ है, सारे के सारे वर्टेक्स इनके डिस्टिंक्ट। पाथ को मैं सिंपल या सॉरी क्लोज्ड, या मैं पाथ को मैं क्या कहूँ, क्लोज्ड या साइकिल कहूँगा इफ v0 इक्वल टू vk, यानी कि फर्स्ट वर्टेक्स एंड द लास्ट वर्टेक्स आर सेम। जो पहला वर्टेक्स और जो लास्ट वर्टेक्स है अगर वो सेम हो जाए तो मैं पाथ को क्लोज्ड पाथ कहूँगा। vv इज ए साइकिल ऑफ लेंथ वन। अब vv कब बनेगा, जैसे मान लीजिए मैं ये लगा दिया, एक सेल्फ लूप लगा दी, तो सेल्फ लूप हमारा ये एक साइकिल है, कितनी लेंथ का, एक लेंथ का। और देख लेते हैं, 2 से मैं 0 पे गया, 0 से मैं वापस 2 पे आ गया, 202 202 इज ए साइकिल, 202 इज ए क्लोज्ड पाथ, इज ए साइकिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ द पाथ इज द नंबर ऑफ एजेस ऑन इट। कहता जो लेंथ है पाथ की वो क्या होंगे, कहता उस पाथ के अंदर जितने भी एजेस आएंगे उसकी लेंथ हो जाएगी। देख लेते हैं, कहता अगर मैं 0 से 2 तक का पाथ देखूं तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 0 1 2, यानी कि 0 से मैं इस रास्ते से 1 पे आया, 1 से मैं यहाँ पे 2 पे चला गया, सो 2 एज आए, इट्स लेंथ इज 2। लेंथ ऑफ पाथ 0 1 2 इन ग्राफ G3 इज 2। फिर सब ग्राफ की बात कर लेते हैं। सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ G इज ए ग्राफ G डैश, एक सब ग्राफ लेना है अगर आपने ग्राफ G का, उसको मैं अगर मान लीजिए जी डैश कहता हूँ, तो एक तो आप वर्टिसेस का सबसेट ले लें, वी जी डैश इज ए सबसेट ऑफ वी जी एंड ई जी डैश इज ए सबसेट ऑफ वी जी, यानी कि आप उसके वर्टेक्स का सबसेट ले लें और उसके एजेस का सबसेट ले लें, या सब ग्राफ के जो एजेस और वर्टेक्स होंगे वो ओरिजिनल ग्राफ का सबसेट होंगे, ऐसे कह लीजिए, देन वी से इट इज ए सब ग्राफ। मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्राफ है, तो एक सिंगल वर्टेक्स वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होता है, वो सारे के सारे मेरे पास सब ग्राफ हैं। अगर मैं इसका ये वाला पार्ट ले लूँ 1 0 2, ये यहाँ से पिक किया 1 0 2, तो ये भी एक सब ग्राफ है। ये नीचे वाला पिक कर लिया 1 3 2, ये भी एक सब ग्राफ है। अगर मैंने ये पिक कर लिया 0 से 3 3 से 2 2 से 1, ये भी एक सब ग्राफ है। इसी तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ के केस में देख लेते हैं कौन कौन से सब ग्राफ है। सिंपल अगर आप वर्टेक्स ले लोगे वो सब ग्राफ है, 0 से 1 तक का आपने ले लिया, ये एक सब ग्राफ है, 0 से 1 1 से 2, 0 से 1 1 से 2, तो ये भी एक सब ग्राफ है। ये सारे के सारे सब ग्राफ हैं ग्राफ्स के। फिर अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर ग्राफ के अंदर कोई दो वर्टेक्स हैं x एंड y, और x और या तो x और y के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है, या y और x के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है, किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में, या तो x से y के बीच में पाथ हो या y से x के बीच में पाथ हो, तो मैं कहूँगा कि वो एक कनेक्टेड ग्राफ है या अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है। ग्राफ मेरा अनडायरेक्टेड है, तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें ग्राफ मेरा क्या है, कनेक्टेड है। अब आपको ये अनकनेक्टेड कौन सा होगा, जो जिसमें कनेक्शन ना हो। मान लीजिए ये है मेरे पास, ये मैंने बना दिया, तो ये मेरे पास, ये अगर ये मैं इसको पूरे को ग्राफ मान लूँ तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, इट इज नॉट कनेक्टेड ग्राफ। फिर डायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शंस को छोड़ दीजिए, डायरेक्शंस को छोड़ के अगर ग्राफ मेरा कनेक्टेड है तो मैं कहूँगा कि वो connected graph है। If the underlying undirected graph is connected, then we say directed graph is a connected graph. Strongly connected directed graph कौन सा होगा, अगर मान लीजिए मैं फिर अगेन कोई दो वर्टेक्स में x और y, अगर x एंड x y के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है एंड y x के बीच में भी पाथ एग्जिस्ट करता है, दोनों के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूँगा कि किसी भी x और y, कोई भी x और y ले और x और y के बीच में भी पाथ एग्जिस्ट करता है और y और x के बीच में भी पाथ एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूँगा कि ग्राफ मेरा स्ट्रांगली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ है। जैसे कि ये आपके सामने एक एग्जांपल, आप 0 से किसी वर्टेक्स पे जा सकते हो, किसी वर्टेक्स से 0 पे आ सकते हो,
1 से किसी पे जा सकते हो, किसी भी वर्टेक्स से 1 पे आ सकते हो, 2 से किसी भी वर्टेक्स पे जा सकते हो, किसी भी वर्टेक्स से 2 पे आ सकते हो। इसी तरीके से 4 और 3 के लिए भी सेम केस है। सो ये ग्राफ मेरा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बट ये ग्राफ मेरा स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? मैं 0 से 1 पे तो जा सकता हूँ, बट 1 से 0 पे नहीं, 1 से 0 पे नहीं जा सकता। मैं 0 से 2 पे तो जा सकता हूँ, बट 2 से 0 पे नहीं जा सकता। मैं 0 से 3 पे जा सकता हूँ, बट 3 से 0 पे नहीं जा सकता। इसलिए ये नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ये सिंपली कनेक्टेड ग्राफ तो है, बट नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। फिर कंप्लीट ग्राफ की बात कर लेते हैं। ए ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरे वर्टेक्स से एक एज के साथ कनेक्टेड है, तो मैं ऐसे ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ कहूंगा। कहता अगर ग्राफ मेरा डायरेक्टेड ग्राफ है तो नंबर ऑफ एजेस, अगर उसके अंदर n वर्ड्स हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? कहता n इंटू n माइनस 1 होंगे। अगर मेरा ग्राफ अनडायरेक्टेड है तो उसके अंदर n वर्सेस अगर हैं तो उसके अंदर कितने एजेस होंगे? कहता n इंटू n माइनस 1 बाई 2 होंगे। चेक कर लीजिए, ये मेरे पास 4 वर्टेक्स का कंप्लीट डायरेक्टेड ग्राफ है। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू 3, 12 एजेस होने चाहिए। सो 2 4 6 8 10 एंड 12। सो 12 है फार्मूला हमारा। ठीक है। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो उसके अंदर कितने हैं? कहते हैं n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये हमारे पास 5 वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ है। तो 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2, तो 5 इंटू 4 20, 20 बाई 2 इज 10। तो 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 है। ये फार्मूला भी हमारा ओके। ठीक होगी जी बात। सो ये हुई बात कंप्लीट ग्राफ्स की, इन विच एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स बाय एन एज। फिर वेटेड ग्राफ की बात कर लेते हैं। ए ग्राफ इज कॉल्ड वेटेड इफ ईच एज ई इन जी इज असाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू डब्ल्यू ई कॉल्ड द वेट और लेंथ ऑफ ई। अगर ग्राफ के हर एक एज को आप एक पॉजिटिव वैल्यू दे दें तो उस ग्राफ को मैं वेटेड ग्राफ कहूँगा। ये आपके सामने एग्जांपल है, चेक कर लीजिए। ग्राफ के हर एक एज को एक पॉजिटिव वैल्यू दे दी गई, उसको वेट दे दिया गया, इसको मैं वेटेड ग्राफ कहता हूँ। कहता अगर मान लीजिए आपके पास है एक ऐसा ग्राफ है जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी गई, वेट नहीं दिया गया, तो हम अज्यूम कर लेंगे इन सब का वेट कितना है? 1 1। कितना है जी? 1 यूनिटी। तो इट इज वो वेटेड ग्राफ हो जाएगा जिसके हर एक एज का वेट कितना है? 1 है। इफ वी आर given no other information about the weights, we may assume any graph G to be weighted by assigning the weight W E equal to 1 to each edge E in G। यही बात इसने कही। तो ये वेटेड ग्राफ हो गया हमारा। अब देख लेते हैं कि ग्राफ्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, ग्राफ को मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो कहता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की वो कौन कौन सी हैं? adjacency matrix, incidence matrix. Then we have adjacency list representation. This is of two types. One is linked and adjacency list, another one is array adjacency list. So linked adjacency list and array adjacency list. चलिए देखते हैं चारों के बारे में क्या कहते हैं। पहले adjacency matrix की बात कर लेते हैं। सो ग्राफ हमारे पास है जी इक्वल टू वी कॉमा आई, जिसके अंदर कितने वर्टेक्स हैं? एन वर्टेक्स। तो उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहता वो क्या होगा? वो कहता है कि 2 डायमेंशनल एन बाई एन अरे होगा, यानी कि जितने वर्टेक्स हैं उतनी ही रोज होंगी, उतने ही कॉलम होंगी। एन इन रोज एन कॉलम्स। उस मैट्रिक्स के अंदर एन रोज एंड एन कॉलम होंगी। इफ द एज वी आई कॉमा वी जे इज इन ई, अगर वी आई कॉमा वी जे नाम का एज एग्जिस्ट करता है हमारे एज सेट के अंदर, तो हम ए आई जे के अंदर 1 कर देंगे, उसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर उसकी वैल्यू कितनी प्रिंट कर देंगे? 1 कर देंगे। और अगर ऐसा कोई एज एग्जिस्ट नहीं करता एज सेट के अंदर, देन ए आई जे की वैल्यू 0 कर देंगे। यानी कि मेरे मैट्रिक्स के अंदर दो ही तरह की वैल्यू होगी, या तो 0 वैल्यू होगी या 1 वैल्यू होगी। तो ये मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर 5 वर्टेक्स हैं। सो चेक कर लीजिए, हमारे पास 5
हमने रो ली हैं और 5 ही कॉलम लिए, तो 5x5 का मैट्रिक्स है। टोटल 25 वैल्यूज हमने फिलअप करनी। सो पहले 1 के लिए देखते हैं। 1 2 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू 1। 1 4 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 1, बाकी सबकी वैल्यू 0। अब 2 पे आ जाइए। 2 1 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 1। 2 5 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 1, बाकी सबकी वैल्यू 0। 3 पे आ जाइए। 3 5 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 1, बाकी सबकी वैल्यू 0। 4 पे आ जाइए। 4 1 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 1। 4 5 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 1, बाकी सबकी वैल्यू 0। सो देयर इज एन एज बिटवीन 5 to 2, सो वैल्यू 1। 5 to 3, value is 1. 5 to 4, value is 1. All other values are 0. So this is the adjacency matrix of a graph. कितने 1 होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर? कहता जी जितने एजेस होंगे उससे ट्वाइस 1 होंगे, जितने एजेस होंगे उससे ट्वाइस 1 होंगे। ये चेक करने के लिए कि आपका मैट्रिक्स ठीक बना है या नहीं। प्रॉपर्टी क्या है एडजेसेंसी मैट्रिक्स की? कहता डायगोनल एंट्रीज आर 0। चेक कर लीजिए, डायगोनल एंट्रीज आर 0। एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ए सिमेट्रिक। जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ग्राफ का, अनडायरेक्टेड ग्राफ का, वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए आई जे की वैल्यू जितनी है उतनी ही ए जे आई की भी होगी फॉर ऑल आई एंड जे। आप चेक कर लीजिए, अगर 1 2 की वैल्यू 1 है तो 2 1 की वैल्यू भी 1 होगी। अगर 4 1 की वैल्यू 1 है तो 1 4 की वैल्यू भी 1 होगी। सो द ग्राफ इज सिमेट्रिक, यानी कि ये इसकी डायगोनल से ऊपर और नीचे वाले आपस में मिरर इमेज है। क्या है जी? दोनों मिरर इमेज है। चलिए आगे देखते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर लेते हैं। डायगोनल एंट्रीज आर 0। डायगोनल एंट्रीज कहता है इसकी 0 हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ डायग्राफ नीड नॉट बी सिमेट्रिक। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक। चेक कर लेते हैं पहले ये बनेगा कैसे। अगेन जितने वर्टेक्स हैं उतनी रोज उतने ही कॉलम, जितने वर्टेक्स हैं उतनी रोज उतने ही कॉलम्स। अब आपने क्या करना? 1 और 4 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 1। 1 और 2 के बीच में अब नहीं करता। अब डायरेक्शन का ध्यान देना है। अब आप पहले वाले केस में हमने डायरेक्शन में की परवाह नहीं की थी, बट अब की बार आपको डायरेक्शन का ध्यान देना है। 2 1 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 1। ये यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं। सो 2 5 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 1। फिर 3 पे आ जाइए। 3 के से कोई नहीं है तो इसलिए इस सबकी वैल्यू 0 है। 4 पे आ जाइए। 4 5 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, वैल्यू 1। 5 2 के बीच में ये नहीं करता था, ये गलत है, ये वैल्यू 0 है आपकी। ठीक होगी जी बात। 5 3 के बीच में एज एग्जिस्ट करता है, ये ठीक है। सो इसके अंदर कितने 1 होंगे? कहता जितने एजेस होंगे उतने ही 1 होंगे, जितने एजेस होंगे उतने डायरेक्टेड ग्राफ के एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर 1 होंगे। ये चेक करने का तरीका है कि ग्राफ हमारा, मैट्रिक्स हमारा ठीक है या नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। सो n स्क्वायर बाइट्स ऑफ स्पेस इज नीडेड टू रिप्रेजेंट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, क्योंकि अगर n वर्टेक्स है तो n इंटू एन, n बाई n इंटू एन का मैट्रिक्स बनेगा, तो n स्क्वायर बाइट्स चाहिए मेरे को। सो n इंटू एन इज n स्क्वायर। अगर n डायरेक्टेड ग्राफ है तो अगर आप लोअर और अपर ट्रायंगल स्टोर कर लें, डायगोनल को छोड़ दें, तो n माइनस 1 इंटू एन बाई 2 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी। ये कम हो जाएगा, n स्क्वायर से कम होकर n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 बाइट्स रह जाएगी। कहता बिग O टाइम चाहिए टू फाइंड द वर्टेक्स की डिग्री। किसी भी वर्टेक्स की आपने डिग्री जाननी है तो आपको ऑन दी एवरेज n कंपैरिजन करने पड़ेगा। ठीक है जी। और वर्टिसेस एडजेसेंट टू ए गिवन वर्टेक्स, अगर हमने ये जानना है कि इस वर्टेक्स के एडजेसेंट कितने वर्टेक्स हैं, उसको भी मैं बिग O टाइम के अंदर फाइंड आउट कर सकता हूँ। बिग O टाइम, बिग O इज ए स्टैंडर्ड नोटेशन टू रिप्रेजेंट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम और मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम। इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं।
अगेन हमारे पास g = v, एक ग्राफ है विद n वर्सेस। अब अगर n वर्सेस हैं और b एजेस हैं तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा n into b का, where b is the number of edges and n is the number of vertex. So incidence matrix of a two-dimensional is a two-dimensional n by b array where b is the number of edges in the graph. चलिए देख लेते हैं ये फर्स्ट एग्जांपल। ये हमारे पास 4 इसके अंदर वर्टेक्स हैं, तो हमारे पास 4 रो हो गई, 4 रोज। 4 ही हमारे पास एजेस हैं, देन वी हैव 4 कॉलम्स। सो वैल्यू कैसे पुट करनी है? E1 V1 और V2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, E1 V1 और V2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो उनकी वैल्यू 1, बाकी सबकी वैल्यू 0। E2 V1 एंड V3 के बीच में एग्जिस्ट करता है, E2 V1 और V3 के बीच में एग्जिस्ट है, इसकी वैल्यू 1, बाकी सबकी वैल्यू 0। E3 V1 और V4 के बीच में एग्जिस्ट करता है, V1 और V4 के बीच में एग्जिस्ट करता है, बाकी सबकी वैल्यू 0। E4 V3 एंड V4 के बीच में एग्जिस्ट करता है, V3 एंड V4, बाकी सब इनकी वैल्यू 1 और बाकी सबकी वैल्यू 0। सो ये केस था जब ग्राफ मेरा अनडायरेक्टेड। अब अगर ग्राफ मेरा डायरेक्टेड है तो देन व्हाट, क्या होगा? यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हैं। अगेन जितने वर्टेक्स हैं उतनी रोज, जितने एजेस हैं उतने कॉलम। अब वैल्यू कैसे फिलअप करनी है? अगर एज जहाँ से शुरू हो रहा है, जिस वर्टेक्स से शुरू हो रहा है वहाँ पे तो 1, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे -1, यानी कि जहाँ से जो सोर्स है, सोर्स की वैल्यू 1, जहाँ पे सिंक कर रहा है वहाँ पे वैल्यू -1, बाकी सबकी वैल्यू 0। तो देखिए E1 A से शुरू हो रहा है, B पे खत्म हो रहा है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -1, बाकी सबकी वैल्यू 0। E2 A से शुरू हो रहा है, C पे खत्म हो रहा है, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू -1, बाकी सबकी वैल्यू 0। एक दो और देख लेते हैं। E7 D से शुरू हो रहा है, E पे खत्म हो रहा है, सो D की वैल्यू 1, E की वैल्यू -1, बाकी सबकी वैल्यू 0। ठीक होगी जी बात। और E8 D से शुरू हो रहा है और D पे ही खत्म हो रहा है, सो D की वैल्यू 1 है, -1 यहाँ पे नहीं आएगा। वैसे ये जनरली लूप शो नहीं कर सकते, ये गड़बड़ है यहाँ पे थोड़ी सी, लूप आप नहीं शो कर सकते इसमें। ठीक होगी जी बात, लूप नहीं शो की जा सकती, अगर आप जनरली बुक्स में देखोगे लूप नहीं शो की जा सकती। सो ये हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स हो। फिर एडजेसेंसी लिस्ट की बात कर लेते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट फॉर ए वर्टेक्स I इज ए लीनियर लिस्ट ऑफ वर्टिसेस एडजेसेंट फ्रॉम वर्टेक्स I, यानी कि ith वर्टेक्स के एडजेसेंट कौन कौन से वर्टेक्स हैं उनकी एक लीनियर लिस्ट है वर्टिसेस की, जिसको मैं एडजेसेंसी लिस्ट कहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? एन अरे ऑफ एन एडजेसेंसी लिस्ट फॉर ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। हर एक वर्टेक्स है जो ग्राफ के लिए, उसके मेरे को कितनी एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए? एन एडजेसेंसी लिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बात करें तो। ये मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 वर्टेक्स हैं, सो 5 आपने लिस्ट बना दी, 5 लिस्ट। सो 1 के साथ कौन एडजेसेंट है? 2 एंड 4 एडजेसेंट है, 2 एंड 4। 2 के कौन एडजेसेंट है? 1 एंड 5, 1 एंड 5। 3 के कौन एडजेसेंट है? 5। 4 के कौन एडजेसेंट है? 1 एंड 5। एंड 5 के कौन एडजेसेंट है? 2 3 एंड 4। ये कैसे भी लिख लीजिए, 2 4 3 2 3 4, इट डज नॉट मैटर। चलो इसकी अब ये सिंपल बात थी। अब लिंक्ड एडजेसेंसी लिस्ट की बात कर लेते हैं। ईच एडजेसेंसी लिस्ट इज ए चेन। हर एक जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी वो एक चेन होगी। अरे की लेंथ कितनी होगी? n होगी। अरे की लेंथ कितनी होगी? अरे की लेंथ कितनी होगी? n। नंबर ऑफ चेन नोड्स कितने होंगे? कहता ट्वाइस ऑफ द एजेस। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो ट्वाइस ऑफ एजेस होंगे, और अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो जितने एजेस हैं उतने चेन नोड होंगे। ये अभी देख लेंगे कैसे। ये मान लीजिए मेरे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो पहले अरे की लेंथ कितनी, क्योंकि 5 वर्टेक्स हैं तो 5 लेंथ हो गई अरे की। अब
1 के साथ कौन कौन एडजेसेंट है, 2 एंड 4। सो ये पहला 2 वाला नोड आ गया, फिर 4 वाला, फिर 2 के कौन एडजेसेंट है, 1 एंड 5। तो ये पहले 5 आ गया, 1 आ गया, फिर 5 आ गया। 3 के कौन एडजेसेंट है, 5। सो ये 5 के साथ कनेक्शन बन गया। 4 के साथ कौन एडजेसेंट है, 1 एंड 5। सो ये 5 एंड 1 का कनेक्शन हो गया। 5 के साथ कौन कनेक्टेड है, ये एडजेसेंट है, 2, 3 एंड 4। सो इट इज 2, 4, 3। तो टोटल, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इसने कहा ट्वाइस ऑफ एजेस, ट्वाइस ऑफ एजेस। एजेस हमारे पास 5 हैं, नोड्स आप काउंट कर लीजिए, इसके 10 हैं, 2, 4, 5 और नीचे 5 है, 10। अब डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 6 वर्टेक्स हैं, तो 6 लेंथ का हमारे पास क्या बन गया जी, अरे हो गया। अब 1 के एडजेसेंट कौन है, 2 एंड 4। सो 2 एंड 4। 2 की एडजेसेंट कौन है, 5। 2 की एडजेसेंट 5। 3 की एडजेसेंट कौन है, 5 एंड 6। 6 एंड 5। 4 की एडजेसेंट कौन है, 2। 4 की एडजेसेंट 2। 5 की एडजेसेंट कौन है, 4। 5 की एडजेसेंट 4। 6 की एडजेसेंट कौन है, खुद 6। सो चेक कर लीजिए अब कितने एजेस थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 ही होने चाहिए, ये 2 हो गए, 3, 2, 5, 6, 7 और 8। सो अगर चेन नोड्स कितने हैं हमारे पास, जितनी एजेस है उतने ही हैं इन केस ऑफ डायरेक्टेड। सो इट इज लिंक्ड एडजेसेंसी लिस्ट। अब अरे एडजेसेंसी लिस्ट की बात कर लेते हैं। ईच एडजेसेंसी लिस्ट इज एन अरे लिस्ट। अरे लेंथ कितनी है, n है। नंबर ऑफ चेन नोड्स ट्वाइस ऑफ edges in case of undirected graph, and in if the graph is directed then it is the number of edges. So ये अगेन हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, अगर उसकी लेंथ कितनी है अरे की, दैट इज 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे ये एक नोड था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ टोटल अरे है। सो 1 किसके एडजेसेंट, 1 के एडजेसेंट कौन कौन है, 2 एंड 4। 2 के एडजेसेंट कौन है, 1 एंड 5। 3 के एडजेसेंट कौन है, 5। 4 के एडजेसेंट कौन है, 5 एंड 1। एंड 5 के एडजेसेंट कौन है, 2, 4 एंड 3। सो इट इज ट्वाइस ऑफ एजेस। यहाँ 5 एजेस हैं तो 10 आपके पास चेन नोड्स हो गए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अगेन लेंथ है जो उसकी क्या कहते हैं अरे की, वो कितनी है, जितने वर्टेक्स हैं, 5 है तो 5 लेंथ हो गई। चलिए अब ए को इसने 0 मान लिया, बी को इसने 1 मान लिया, सी को इसने 2 मान लिया, डी को इसने 3 मान लिया, ई को इसने 4 मान लिया, क्योंकि यह नंबरिंग करनी पड़ेगी, ए बी सी डी नाम से कोई हमारा अरे नहीं होता। सो ए के एडजेसेंट कौन है, बी एंड सी, सो बी सी। बी के एडजेसेंट कौन है, डी एंड ई, सो डी। ठीक है जी। सी के एडजेसेंट कौन है, डी, तो डी। डी के एडजेसेंट कौन है, ए, ई एंड डी, ए डी ई। और ई के एडजेसेंट कोई नहीं है तो यहीं पे नल। सो दिस इज हाउ द अरे एडजेसेंसी लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड। एडजेसेंसी मैट्रिक्स वर्सेस एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, दोनों के बीच में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स कब यूज किया जाता है, जब ग्राफ हमारे डेंस है। जब ग्राफ हमारे डेंस है यानी कि ग्राफ मेरा या तो कंप्लीट हो या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, यानी कि एजेस कितने हो, नंबर ऑफ वर्टेक्स का स्क्वायर हो, जितने वर्टेक्स हैं उसका स्क्वायर के इक्वलेंट हो, तो हम कह देंगे, अगर मान लीजिए 5 है तो 25, 5 वी स्क्वायर होकर बिग ओ वी स्क्वायर, यानी कि इतने अगर एजेस हों तो आपका फिर वो क्या होगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। उसके लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर ये डेंस नहीं होगा तो मैट्रिक्स हमारा स्पार्स हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ग्राफ मैट्रिक्स के अंदर जीरोज होंगी रादर देन नॉन जीरो वैल्यूज। मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, कहता बिग ओ वी स्क्वायर, यानी कि जितने वर्टेक्स हैं उसका स्क्वायर नंबर ऑफ मेमोरी रिक्वायरमेंट है। एडवांटेज क्या है, कनेक्टिविटी बिटवीन टू वर्सेस कैन बी टेस्टेड क्विकली, दो वर्टेक्स के बीच में कनेक्टिविटी इजीली टेस्ट की जा सकती है, क्विकली टेस्ट की जा सकती है। अगर एडजेसेंसी लिस्ट
तो रिप्रेजेंटेशन कब बेटर है? जब ग्राफ हमारे स्पार्स हो, यानी कि जितने वर्टेक्स हैं अप्रोक्सीमेटली उतने ही एजेस हैं। मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी है? कहता है बिग ओ वी प्लस ई, दैट इज बिग ओ वी, यानी कि जितने वर्टेक्स हैं अप्रोक्सीमेटली उतनी ही मेमोरी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। वर्सेस एडजेसेंट, एडवांटेज, कहाँ एडवांटेज है इसका? कहता है वर्सेस एडजेसेंट टू अनदर वर्टेक्स कैन बी फाउंड क्विकली। अगर किसी वर्टेक्स के एडजेसेंट वर्टेक्स चेक करने हैं तो उसको आप क्विकली ढूंढ सकते हो इन केस ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। इन केस ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स, connectivity between two verses can be tested quickly. In case of adjacency list, vertex adjacent to another vertex can be found quickly. आज के लिए इतना, थैंक यू।